In this class, we are going to take up a numerical session and we will be solving numerical problems related to the topics that we have previously studied. And most recently, we have covered these topics: forced vibration, due to rotating and reciprocating imbalance, and since we are going to solve numerical problems today, it is important that we get ready with a collection of formulae which we can directly apply as and when required. So if you refer back to the notes of your rotating and reciprocating unbalance topic, this one, note number 9, we see that this is the first equation that you have to remember. So let us just jot it down. Y naught upon m naught E by m is equal to r square upon under root. Now, what does this equation say? This equation says that if I have a machine, let us say I'll draw it here. If I have a machine with a rotary imbalance m naught at a distance of E from the rotary center, the ground is fixed, it is not moving, only there is some rotating imbalance in the machine of total mass m, imbalance mass m naught, eccentricity E. So for a given problem, you have to identify m naught, m and E, and y naught is the maximum displacement from the mean position due to the vibration of the machine. R in this expression is omega upon omega n, where omega is the radians per second of rotation of the rotating parts, and omega n is the natural frequency of your system. So if your system has elasticity comparable with a spring of spring constant K, damping constant C, and total mass of the system is m, then omega n can be simply found by under root of K by m. That's it. This zeta is the damping factor, which can be found by taking the ratio of C by Cc, where C will be somehow given in the problem and Cc can be calculated as, either you can calculate it as 2 root Km or you can calculate it as 2m omega n. Both are the same. So this is the concept of this formula. This was just for revision. Then there is a phase angle which remains the same. This is the angle of lag between the centrifugal force m naught E omega square and y naught. This is the force which actually makes the machine jump up and down. And y naught is the displacement that is visible once the machine starts jumping up and down. So both of these things, f naught and y naught, these are the amplitudes. Okay. And in general, the sinusoidal formats of these are f naught is f and y naught is small y. So basically this phi is the constant angle of phase by which this force F leads
the displacement y. And this can be calculated as tan inverse of 2 zeta r upon 1 minus r square. And you have to remember that phi cannot be negative. It has to be positive. So if in some question or in some instance your phi comes out as a negative quantity, you have to convert it into a positive quantity by using the relation that tan of phi will always be equal to tan of 180 degree plus phi. So if your phi comes out as a negative value, you just add 180 degrees to it, and that will be the correct positive value for phi. Anyway, these are the two formulae that we have collected for your rotating and reciprocating imbalance. Now, if the question comes from reciprocating imbalance, then in that case, this formula would remain the same. Both these formulae are the same, but the context of these things change. R is the same, zeta is the same, but m naught, instead of being the mass of imbalance rotating mass, in this case it becomes the mass of the reciprocating parts or the mass of the piston. Now m naught is not a rotating part, it is a reciprocating part. Okay, and small e is not eccentricity. Small e is actually the length of the crank rod. And if the length of the crank rod is not specifically mentioned, it can be found out from this relationship, where capital L is or would be given as the stroke length. तो अगर स्ट्रोक लेंथ दे रखी है तो स्मॉल ई की वैल्यू स्ट्रोक लेंथ का हाफ होगी. इस तरीके से लिया जा सकता है. So we are talking about using the same formula for reciprocating parts also, but the only difference is m naught is the mass of reciprocating parts, e is half of stroke length. That is all that you have to remember. Now let us go to the next topic that we studied, and this was the 10th topic, that is forced vibration due to excitation of support. Now in this case, your support is not fixed. It is also moving. So there are two motion variables now. The first variable is y, which you are giving to the support, and the second variable is x, which is generated due to the motion of the support. And k and c are experiencing the relative magnitude of motion because of the motion of the mass and of the support. Since both of them are moving, these entities which are trapped in between k and c, they will be experiencing relative motion. Anyway, in this particular topic, the equations that we have to remember, this is the first one. So let us take this one down also. Second topic is forced vibration due to excitation of support. And in this, the formula that you have to remember is x naught upon y naught is equal to under root of 1 plus 2 zeta r whole square divided by the denominator, as I have already indicated. For many formulae, it is the same. It is 1 minus r square whole square plus 2 zeta r whole square. Now, once again, let us understand the significance of this formula. What does this formula speak about? क्या कहता है आपसे ये formula? This formula says that if you have a mass, spring, damper, and a support which is not fixed. Now assume that you give a motion to your support, a sinusoidal motion, where y is equal to y naught sine omega t. So what is y naught here? Y naught is the maximum displacement of the support from its mean position. Now when you start shaking the support with a sinusoidal motion,
then somehow the mass will also start moving, and the amplitude of motion of the mass will be depicted by x naught. So this formula says if y naught amplitude of motion is given to the support, how much will be the amplitude of motion of the mass? Or in other words, you can simply say how much is the transmission of the motion. When motion is given to support, कितना motion mass पे transmit हुआ. And therefore, this equation is also called as the equation of motion transmissibility. ठीक है? Rest of the things you already know. Zeta को कैसे calculate करना है, R को कैसे calculate करना है, you already know. So this is the story about excitation of support and the formula that you have to remember for that. There are two angles when it comes to excitation of support. One angle is the same old angle phi. This says the equation is the same, tan inverse 2 zeta r upon 1 minus r square. Now this phi angle is once again the angle of lag between whatever force was used to apply the motion of the support. भाई सपोर्ट कैसे चलना चालू हुई, आपने कुछ तो फोर्स लगाई होगी, हमने लेकिन इसमें कहीं पे भी फोर्स क्या लगा है सपोर्ट पे इसकी बात नहीं की है. हमने सिर्फ सीधे बोला कि भाई किसी फोर्स के चलते सपोर्ट जो है वो y नॉट साइन ओमेगा टी के मोशन से चलने लग गई मान लो. तो ये फाई जो है दिस गिव्स यू द फेस एंगल बिटवीन दैट फोर्स एंड द आउटपुट मोशन, यानी कि आपका x नॉट. ठीक है. एंड देयर इज अनदर एंगल अल्फा. दिस इज गिवन एज tan इनवर्स ऑफ 2 zeta r. ये क्या चीज है? दिस इज द फेस by which the resultant of your damper force and spring force they vary. This is your alpha. ठीक है. So basically alpha is nothing but tan inverse of c omega upon k. And if you make some modifications to this, you can directly get 2 zeta r. So this is alpha. ठीक है. Now the total angle of lag between the motion of the mass and the motion of the support, यानी कि phi तो जो है that is the angle of lag between applied force and the output motion. फिर आप बेसिकली ज्यादा इंटरेस्टेड फाई में नहीं है इस केस में, आपका ज्यादा इंटरेस्ट इसमें है कि भाई मैं वाई नॉट से सपोर्ट को शेक कर रहा हूं तो मेरा मास जो है वो एक्स नॉट से शेक हो रहा है. तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे एक्स जो कि मास का डिस्प्लेसमेंट है और वाई जो कि मैं सपोर्ट को डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, इन दोनों के बीच में कितना फेस का एंगल का डिफरेंस है. दैट phase angle or the angle of lag between output motion and input motion is given by phi minus alpha. So this is simply alpha minus phi tan inverse 2 zeta r upon 1 minus r square minus tan inverse 2 zeta r आ जाएगा. बस इतना सा. So these are the two formula that you have to remember, or rather I should say three formulae. Angle of lag between x and y. ठीक है.
ये फॉर्मूले हमने एक बार रिवाइज कर लिए, क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। ये देखो ये आ गया। यस, वन मोर फॉर्मूला, रिलेटिव मोशन ऑफ मास का एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। दिस सेज दैट इफ y naught is the amount of or the amplitude of motion I am giving to the support, and z naught is the relative displacement of mass with respect to the support, then the ratio of z naught upon y naught is given by this. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सीधी सीधी भाषा में पचाना मुश्किल होता है कि भाई ये z नॉट का इतना लंबा चौड़ा पचड़ा आखिर बनाया क्यों गया, x नॉट अपॉन y नॉट काफी था, z नॉट अपॉन y नॉट करने की क्या जरूरत है। तो उसके लिए एक स्पेशल न्यूमेरिकल मैं आज तैयार करके लाया हूं आपके लिए। उस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों होती है। एनीवे, दिस फॉर्मूला आल्सो हैज टू बी रिमेंबर्ड, द एम्पलीट्यूड रेशियो for relative motion. So let us take this down also. Z naught upon y naught is equal to r square upon, डिनोमिनेटर देखिए वही सेम है, okay. Now we are ready to start with the numerical problem. तो पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराता हूं, प्रॉब्लम नंबर 8. प्लीज हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8. A trailer has 900 kg mass when fully loaded and 300 kg when empty. ठीक है, तो एक ट्रेलर की बात कर रहे हैं जिसके दो मास हैं, अगर फुली लोडेड है तो 900 किलो और अगर खाली है तो 300 किलो. ओके, लेट अस सी. द स्प्रिंग ऑफ द सस्पेंशन हैज अ स्टिफनेस ऑफ 300 किलो न्यूटन पर मीटर, ए की वैल्यू दे रखी है. डैम्पिंग रेशियो is 0.5 when the trailer is fully loaded. तो इन्होंने एक छोटा सा ट्रिक लगाया है यहाँ पे, थोड़ा सा अटेंटिवनेस देखने के लिए है, अदरवाइज इतना कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं है ये. इन्होंने दो सिनारियो में मास दे रखे हैं, 900 केजी और 300 केजी, और इन्होंने बोला कि डैम्पिंग रेशियो ऑफ ट्रेलर 0.5 तब है जब ट्रेलर फुली लोडेड है. तो इसमें अपन को क्या करने का है, ये 300 किलो का जो मास है इसको इग्नोर करना है और 900 केजी मास ट्रेलर का मास कंसिडर करना है. दैट इज ऑल. ठीक है. इट ट्रेवल्स ऑन द रोड एट 90 किलोमीटर पर आवर. तो ट्रेलर की स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी. ठीक है, द वेलोसिटी विद विच इट इज ट्रेवलिंग. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से कई बार रिपीट होता है. भाई अपन इस बात पे भी डिस्कशन एक बार स्टार्ट कर चुके हैं कि आखिरकार अगर मैं मोशन ऑफ सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट को मैं साइनोसॉइडल मोशन कैसे दे सकता हूं. उस पे अपन ने एक डिस्कशन किया था कि रोड को ही साइनोसॉइडल बना दो, तो गाड़ी जब रोड पे चलेगी तो गाड़ी का जो टायर है वो सपोर्ट है, वो सपोर्ट साइनोसॉइडल मोशन से अपने आप ही चलेगा. अब यही बात यहां न्यूमेरिकल में आ गई है. द रोड हैज अ साइनोसॉइडल प्रोफाइल with a wavelength of 5 meters. Find the amplitude ratio of the trailer when it is fully loaded. ये क्वेश्चन है आपका. ठीक है, तो एक बार अपन वापस अपने तरीके से सॉल्व जैसे करते थे. गिवन डेटा, दे आर आस्किंग अबाउट एम्पलीट्यूड रेशियो. और सबसे पहली बात है, जैसे ही आपको साइनोसॉइडल प्रोफाइल के रोड की बात कहीं पर भी दिख जाए तो आप इसको कौन से टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन मानोगे, पहले तो ये बताओ. दो टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन, फोर्स्ड वाइब्रेशन ड्यू टू रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग इंबैलेंस का क्वेश्चन है या
फोर्स्ड वाइब्रेशन ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट का क्वेश्चन है। आप बताओ कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये? साइनोसॉइडल रोड वाला। सर एक्साइटेशन और सपोर्ट। एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा फिगर भी आप बना सकते हैं। भाई आपने कहा कि रोड साइनोसॉइडल है, मेक इट लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी गाड़ी आ रही है इधर से, ये डायग्राम हालांकि आपके इसमें नहीं दे रखा है प्रॉब्लम में, बट यू कैन कंस्ट्रक्ट दिस डायग्राम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दिस व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं अपन कितनी है, the velocity of it travels on the road at 90 kilometer per hour. Kilometer per hour is not a desirable unit. We need units in SI system. 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए जरा, कैसे करते हैं? क्या करूं मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने? 5/18 से टू यू मल्टीप्लाई इट विद 5/18। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए कितना आ रहा है? 25 मीटर पर सेकंड। 25 meters per second. So the velocity with which the trailer is moving on this sinusoidal road is 25 meters per second. ठीक है, और देखें क्या क्या डेटा दे रखा है, स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अपन ने ये पहले ही देख लिया, सिंस द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द ट्रेलर हैज टू बी फाउंड व्हेन इट इज फुली लोडेड, तो फुली लोडेड वाला मास लेंगे, मास इज 900 केजी, और 300 केजी आपको डिसेप्टिव तरीके से दिया गया है, यानी कि आपको भटकाने के लिए दिया गया डेटा है। दिस इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड। 300 केजी का कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में, ओनली 900 केजी विल बी यूज्ड। So mass of the trailer M is equal to 900 kg। और देखें, spring of the suspension has a stiffness of 300 किलो न्यूटन पर मीटर। K की वैल्यू कितना लूं बताइए? 300 300,000 या फिर 300 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और देखें क्या दिया हुआ है, डैम्पिंग रेशियो इज 0.5। ये क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है कि जीटा दिया हुआ है? जीटा। ये जीटा दिया हुआ है क्योंकि इसकी यूनिट भी नहीं है, और दूसरी बात है दिस इज रेशियो, तो डैम्पिंग रेशियो या डैम्पिंग फैक्टर आ जाए तो जीटा है, डैम्पिंग कांस्टेंट या डैम्पिंग कोएफिशिएंट आ जाए तो सी है। तो जीटा इज ऑलरेडी डायरेक्टली गिवन एज 0.5, नो यूनिट। वेवलेंथ, साइनोसॉइडल प्रोफाइल की रोड है विद अ वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर। इसका क्या मतलब है? इस फिगर में कोई जरा समझा सकता है? ये 5 मीटर कहां दिखाएंगे? क्या है 5 मीटर? सिर्फ वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन के अंदर ये 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली। या फिर ऐसा कह सकता हूं कि रोड का जो एक पीक है, उस पीक से रोड के अगले वाले पीक तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। यस। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ अ साइनोसॉइडल रोड। ठीक है, या तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट की डिस्टेंस ले लो, एडजेसेंटली बैठे हुए हैं जो, या जस्ट एडजेसेंट कोई से भी दो ट्रॉफ टू ट्रॉफ का ले लो। क्रेस्ट एंड ट्रॉफ्स होते हैं, दिस इज अ क्रेस्ट, दिस इज अ ट्रॉफ। ठीक है,
एनीवे ये 5 मीटर दे रखा है आपको, ये अपनी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अपन को निकालने को क्या पूछा गया है, एम्पलीट्यूड रेशियो। अब ये बताओ ये एम्पलीट्यूड रेशियो क्या चीज है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड रेशियो? Why not? एम्पलीट्यूड रेशियो R. नो, वो फ्रीक्वेंसी रेशियो है। आर इज फ्रीक्वेंसी रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो क्या है? देखो भाई, आप अपने फॉर्मूला सेट के अंदर जाकर के देखो, ये एक एम्पलीट्यूड रेशियो है, क्योंकि ये दो एम्पलीट्यूड्स का रेशियो बताता है, लेकिन ये रिलेटिव है। यहां पर रिलेटिव की कोई बात नहीं हो रही है, यहां पर सीधे सीधे x नॉट बाय वाई नॉट मांगा जा रहा है आपसे। दिस इज द एम्पलीट्यूड रेशियो, यानी कि आपका टायर, ये वाई नॉट जो है, ये टायर का अप डाउन मोशन है, साइनोसॉइडली मूव कर रहा है ना, तो टायर का अप डाउन मोशन कितना मैक्सिमम हो रहा है, और टायर के ऊपर जो मास बैठा हुआ है उसका जो मोशन होगा वो एक्स नॉट है। दिस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड रेशियो। ठीक है, सपोर्ट का मोशन वाई नॉट, मास का मोशन एक्स नॉट, द रेशियो ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड्स इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड रेशियो। तो यहां पर आपसे एक्स नॉट बाय वाई नॉट मांगा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है, 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर का अंडर रूट। एम्पलीट्यूड रेशियो सीधे सीधे एक्स नॉट अपॉन वाई नॉट मांगा गया है। तो अब अपन को क्या क्या इसमें से निकालना है, जीटा तो दे रखा है, जीटा इज गिवन, आर चाहिए अपने को, जीटा और आर मिल जाए तो इसमें डालो, सब्स्टिट्यूट करो और एक्स नॉट बाय वाई नॉट की वैल्यू डिक्लेयर कर दो, काम खत्म। तो जीटा की वैल्यू 0.5 गिवन है, आर क्या चीज है, आर इज फ्रीक्वेंसी रेशियो, इट इज ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। ठीक है, ओमेगा एन तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो निकाल लो एक बार जल्दी से, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। के दे रखा है, एम दे रखा है, जल्दी से बताइए ओमेगा एन रेडियन पर सेकंड में कितना है? एटीन 18.26 रेडियन पर सेकंड। ओके, 18.26 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा कैसे निकालेंगे? ठीक है, ओमेगा का मतलब है, अब देखो ये ओमेगा जो है ये काफी कंफ्यूजिंग टर्म है इस केस में। ये ओमेगा क्या टायर के रोटेशन की ओमेगा है क्या? नहीं है, ये ओमेगा आपके इस साइनोसॉइडल प्रोफाइल पे, ये गाड़ी ऐसे साइनोसॉइडली ऊपर नीचे करके जब जा रही होगी तो बेसिकली एक साइनोसॉइडल प्रोफाइल को कवर किया जा रहा है, तो उस साइनोसॉइडल प्रोफाइल को कवर करने की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, कि कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ये साइनोसॉइडल प्रोफाइल पे गाड़ी चल रही है, दिस इज द ओमेगा हियर। ठीक है, तो अब ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, we should know that omega can be found by 2 pi by t। ठीक है, यानी कि एक वेवलेंथ को कवर करने में गाड़ी कितना टाइम लगा रही है, वो टाइम अगर अपन को मिल जाए तो आपके साइनोसॉइडल प्रोफाइल को कवर करने वाली टाइम पीरियड पता लगती है, और अगर 2 पाई बाय टाइम पीरियड कर दिया तो आपको साइनोसॉइडल प्रोफाइल की ओमेगा मिल जाएगी। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, क्या इस गिवन डेटा से टाइम पीरियड निकालने का कोई तरीका है क्या? हाँ सर, कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। यस, एज सिंपल एज दैट। आपको एक टाइम पीरियड का मतलब क्या है, एक क्रेस्ट से लेकर के दूसरे क्रेस्ट तक पहुंचने में जो टाइम लग रहा है वो एक टाइम पीरियड है।
जब एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ व्हीकल 25 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो गया? Isn't it 5 मीटर divided by 25 मीटर पर सेकेंड? 0.2 0.2 ठीक है, सही हो गया ना? तो 0.2 सेकेंड्स है टाइम पीरियड। तो ओमेगा कितना हो गया, आप जल्दी से बता दो। 31.416 रेडियन पर सेकंड 31.416 16 रेडियंस पर सेकेंड। ये मिल गया आपको, ओमेगा मिल गया है, ओमेगा एन मिल गया है। अब जल्दी से आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू निकाल करके जीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी 0.5 दे रखी है। जल्दी से ये सारे कैलकुलेशन करो और इस इक्वेशन में डालो। कौन सी इक्वेशन में? x नॉट बाय y नॉट इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 जीटा आर होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। जल्दी कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो। जीटा कितना दे रखा है? 0.5 है। सर 0.763 763 चेक कर लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्यूटोरियल शीट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस गो एंड चेक द सॉल्यूशन। ओके, 0.76 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन अपन ने अभी सॉल्व किया, ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये मान के चलो कि अगर आपके एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट से अगर कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश बनती है तो 95% इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आपने इसको एक बार सक्सेसफुली समझ लिया, सॉल्व कर लिया, तो अब आगे इसके टाइप के सारे क्वेश्चन बस ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम। साइनोसॉइडल प्रोफाइल दे देंगे, वेलोसिटी दे देंगे, उसको डिवाइड करके टाइम पीरियड निकालना है, ओमेगा निकालना है, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। ठीक है, चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एक ये पहली बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपके ट्यूटोरियल शीट में जो मैंने आपको दिया है उसमें नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहूं तो एक बार और आपको ये ट्यूटोरियल शीट भेज दूंगा जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको इंक्लूड होकर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट क्लियर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अब चलो देखते हैं क्या बोलता है ये क्वेश्चन। अ रेडियो सेट of 20 kg mass must be isolated from a machine vibrating with amplitude of 0.05 mm at 500 cpm. The set is mounted on 4 isolators, each having a spring scale of 31,400 Newton per meter and a damping coefficient of 392 Newton second per meter. ठीक है, अच्छा अब पहले तो इसको समझते हैं। 2 या 3 लाइन की क्वेश्चन है लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा छुपी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अ रेडियो सेट मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ मशीन वाइब्रेटिंग। तो इसमें दो दो चीजों की बात हो गई। एक मशीन भी है जो वाइब्रेट कर रही है लेकिन उसका मास नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है एक रेडियो सेट का।
और बोल रहे हैं कि रेडियो सेट को हमें मशीन से आइसोलेट करना है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, द सेटअप इज समथिंग लाइक दिस। एक मशीन है, और उसके ऊपर एक रेडियो सेट रखा हुआ है। द सेटअप इज समथिंग लाइक दिस। और इस रेडियो सेट के 4 पैर हैं। दिस मशीन इज वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन, ठीक है, विथ एम्पलीट्यूड वाई नॉट। अब रेडियो के जो पैर होते हैं, आपके किसी भी मशीन के, गैजेट के जो सपोर्ट के जो 4 पैर होते हैं, आपने कभी देखा हो तो बेसिकली दे आर मेड ऑफ सम रबर टाइप मटेरियल। इस तरह के पैर होते हैं उसके। गिट्टियां जो होती है, छोटे छोटे 4 गिट्टियों को पिना रखा है, इसके पैर बना रखे हैं रेडियो के, ठीक है। आप इसके एक पैर को अगर खोल के अगर आप दबा के देखें तो यू विल सी दैट दिस इज मेड ऑफ सम रबर type of substance, and generally the type of rubber is neoprene. ये सब इंफॉर्मेशन अभी प्रॉब्लम में नहीं दे रखी है। प्रॉब्लम में ये ऐसा एज्यूम किया है कि भाई इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ये सब इनको पता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तक नहीं पता था तो अब आगे अपन को पता लग गई बात। तो ये जो नियोप्रीन के जो पैर हैं इसके, यानी ये रबर टाइप मटेरियल के जो 4 सपोर्ट्स हैं इसके रेडियो के, ये सपोर्ट मशीन के ऊपर बैठे हैं और मशीन हिल रही है। तो बेसिकली अब आपका ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसी प्रॉब्लम हो गई। It is the same problem of motion transmissibility. इसमें जो मशीन है पूरी की पूरी वो आपका सपोर्ट हो गया, एंड इट इज मूविंग विद अ वाई नॉट एम्पलीट्यूड। नियोप्रीन के जो 4 पैर हैं, हर एक पैर एक स्प्रिंग मास कॉम्बिनेशन की तरह एक्ट करता है, और स्प्रिंग डैम्पर कॉम्बिनेशन की तरह, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियोप्रीन रबर जो आप इसको अगर आप प्रेस करें, ऊपर नीचे प्रेस करें, तो इसमें इलास्टिसिटी तो है ही, क्योंकि रबर है। तो वो जो रबर की इलास्टिसिटी है उसको स्प्रिंग से रिप्रेजेंट कर दिया आपने, और उसके अंदर का जो मटेरियल है वो आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है। तो उसमें एनर्जी डिसिपेट भी होती है। तो उसकी एनर्जी डिसिपेटिंग कैपेसिटी या एनर्जी लूजिंग कैपेसिटी जो है, दैट कैन बी इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंटेड बाय अ डैम्पर। So every neoprene leg और the every single रबर की जो गिट्टी लगा रखी है, 4 गिट्टियों पे रेडियो को रखा हुआ है, तो उसमें हर एक गिट्टी जो है वो एक स्प्रिंग डैम्पर कॉम्बो की तरह काम करता है। लेकिन हम यहाँ पर जब एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम तो सिर्फ एक स्प्रिंग और डैम्पर लगाते हैं साहब, अपन 4 तो लगाते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम को एक और बार पढ़ के देखें, ये क्या बोलता है। The radio set must be isolated from a machine vibrating with this. The set is mounted on 4 isolators. तो ये 4 गिट्टियां लगी है, ये मुझे कैसे पता लगा? Every neoprene गिट्टी is called as an isolator. आइसोलेटर का मतलब ही यही होता है। अब आपको पता लग गया कि ये रबर के क्यों बनाए जाते हैं पैर। भाई इसके नीचे कीली लगा दो, या फिर लकड़ी के लट्ठे लगा दो, या लकड़ी की गिट्टियां लगा दो, क्यों नहीं लगाते? अपन रबर की गिट्टियां या प्लास्टिक की गिट्टियां क्यों लगाते हैं? बिकॉज रबर्स हैव गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एज वेल एज विस्कोसिटी। तो ये स्प्रिंग
और डैम्पर के कॉम्बो की तरह काम करती है रबर की गिट्टियां, इसीलिए अपन रबर की गिट्टियां अधिकतर केस में लगाते हैं। ठीक है, तो एनीवे there are 4 isolators. Each of these neoprene legs of your radio are called as isolators. तो 4 आइसोलेटर हैं। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि रेडियो सेट का थोड़ा सा अगर मैं एनलार्ज्ड इमेज बनाऊं, तो हर एक नियोप्रीन का जो आइसोलेटर है वो ऐसा है। उसको मैं एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग डैम्पर में कन्वर्ट करूं तो आई विल सी समथिंग लाइक दिस। 4 legs are like 4 springs and 4 dampers. तो अब ये बताओ, इस कॉम्बिनेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं एक इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि मैं पूरे रेडियो को एक मास बना दूं और उसके नीचे एक स्प्रिंग और एक डैम्पर लगा के सिस्टम बनाना चाहता हूं। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? सर ऐड अप हो जाएंगे सर पैरेलल। क्योंकि ये सारे स्प्रिंग्स पैरेलल में हैं और सारे डैम्पर पैरेलल में हैं, तो अगर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, भाई चारों मैं मान रहा हूं, इसमें ज्यादा डिटेल तो नहीं दे रखी, लेकिन अगर नहीं दे रखी तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ऑल द 4 आइसोलेटर्स हैव द सेम प्रॉपर्टी। सो all isolators have the same value of K and all isolators have the same value of C, and all the C values are in parallel and all the K values are in parallel. तो मेरा टोटल K कितना बन जाएगा? This is nothing but 4 times K, और मेरा टोटल C कितना बन जाएगा? Nothing but 4 times C. समझ में आ गया? अब ये कॉन्सेप्ट अपन को क्लियर हो गया है, तो अब अपन अपना डेटा कंस्ट्रक्ट करने के लिए रेडी है। सो लेट अस गो बैक टू द प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके एडिशनली लाया था, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं और इसमें अभी और भी कॉम्प्लिकेशंस है। लेट अस जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, रेडियो सेट का मास दे रखा है 20 kg। लेट मी टेक डाउन द इंफॉर्मेशन। M is 20, given data लिख रहा हूं। The machine is vibrating with amplitude of 0.05 mm. ये क्या चीज है? ये इंफॉर्मेशन क्या है बताओ, इस फिगर में देख करके बताओ। Machine is vibrating with an amplitude of 0.05 mm. What is this data? वाई नॉट। ये y नॉट है, आपके सपोर्ट का एम्पलीट्यूड दे रहा है ये। सो y नॉट इज इक्वल टू, अच्छा 0.05 mm को क्या लिखूं मैं? सही है क्या? 3 बार इसको Yes, पीछे sir. ले गया डेसिमल को, दैट मींस आई हैव डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट द यूनिट फ्रॉम mm टू मीटर। ठीक है, आगे चलें। इट इज वाइब्रेटिंग विथ एम्पलीट्यूड ऑफ इतना mm एट 500 CPM। CPM क्या चीज है, कोई बता सकता है क्या? व्हाट इज CPM? सेंटीमीटर पर मिनट। नो, CPM is the same as RPM। ठीक है, रोटेशंस पर मिनट कह लो या फिर साइकिल्स पर मिनट कह लो। C रिप्रेजेंट साइकिल्स। ठीक है, तो ये CPM देख करके कभी आप घबरा मत जाना यार, ये CPM कौन सा यूनिट है। CPM और RPM एक ही चीज है। रोटेशंस पर मिनट या रेवोल्यूशंस पर मिनट को RPM कहा जाता है और साइकिल्स पर मिनट को CPM कहा जाता है। ठीक है,
तो 500 आरपीएम पे मशीन चल रही है, इस डेटा से मेरे को क्या मिलेगा, मेरे काम की कौन सी चीज मिलेगी? ओमेगा। गिवन एन द स्पीड 500 सीपीएम या फिर आरपीएम, इससे मेरे को ओमेगा मिल जाएगी। कैसे मिल सकती है ओमेगा? हाउ डू आई कंस्ट्रक्ट ओमेगा फ्रॉम एन? 2π/60। 2πn/60। जल्दी से बता दो ओमेगा कितना है? फिफ्टी 2.36 रीडिंग पर सेकंड। 52.36 रेडियंस पर सेकेंड, यही है ना? अच्छा, एक चीज और आपको याद दिला दूं, कभी कभी ये ट्रिक करने के लिए सीपीएम की जगह पे सीपीएस दे देते। अब क्या करोगे? सो केवल 2π से इंटू करेंगे। यस, ये ध्यान रखना, सीपीएम की जगह अगर सीपीएस दे रखा है तो इसका मतलब है साइकिल्स पर सेकंड। तो ऑलरेडी सेकंड बन चुका है, तो अब आपको यहां पर 60 से डिवाइड नहीं करना, तो ओमेगा सीधे सीधे 2πn हो जाएगा। बस ये ध्यान रखने की चीज है। ये सब ऐसा माना जाता है कि भाई ये सब चीजें तो लड़कों को पता ही हैं, ये सब हमको समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी ऐसा जाल फैलाते हैं ये लोग, जिससे कि सब कुछ पढ़ा हुआ होने के बावजूद कहीं गलती कर दे लड़का। ठीक है, तो दिस इज सीपीएस है तो 2πn, सीपीएम है तो 2πn/60। नाउ वी हैव रेडियंस पर सेकेंड और ओमेगा। अब अपन आगे चलते हैं, और क्या डेटा दे रखा है? 4 आइसोलेटर्स हैं, ईच आइसोलेटर हैज अ स्प्रिंग स्केल ऑफ 31400 एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट ऑफ 392। ठीक है, तो मैं अपने प्रॉब्लम के लिए k की वैल्यू कितनी लूं और c की वैल्यू कितनी लूं, आप बताओ। की वैल्यू तो So multiply by 4. 31400। इसको 1/4 करूं या 4 गुना करूं? 4 गुना करना पड़ेगा, 4 गुना. क्योंकि 4 आइसोलेटर लगे हैं और हर आइसोलेटर की वैल्यू दे रखी है। और अपन ने पहले ही देख लिया कि चारों को जब लगाओगे तो वो पैरेलल में लगेंगे, तो पैरेलल में ऐड हो जाती है वैल्यूज। सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ k विथ 4 एंड मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ c विथ 4 ऑल्सो। सो इवेंचुअली मैं अपने प्रॉब्लम में k को कितना लूंगा? दैट विल बी 31400 इंटू 4 कितना है? 125,600। आ गया, इतना ही है। यस। और c कितना है? c की वन एक की वैल्यू है 392, 392 बाय मल्टीप्लाइड बाय 4, 1568। 1568 न्यूटन सेकंड पर मीटर। सही है। अपने पास सारा डेटा आ गया है। ठीक है, अब अपन को ये पूछ रहा है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडियो। तो ये तो अपन पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं कि ये वाले जो प्रॉब्लम है ये मोशन ऑफ सपोर्ट या एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है? x0/y0 इक्वल टू √1 + 2 zeta r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 - r² का होल स्क्वायर प्लस 2 zeta r का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा आपका। ये पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडियो कितना है। तो ये देखो, रेडियो तो आपका ऊपर रखा हुआ मास हो गया, इसका एम्पलीट्यूड x से नापा जाता है, और नीचे रखा जो सपोर्ट है जो कि मशीन है वो आपका y0 है, उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और y0 ऑलरेडी दे रखा है, x0 पता करना है। तो वापस से अपन वही सेम एम्पलीट्यूड रेशियो वाला इक्वेशन यूज करेंगे। अब की बार आपको जीटा दे रखा है, r दे रखा है, y0 दे रखा है, x0 पता करना है। जल्दी से इक्वेशन यूज कीजिए, सारा डेटा आपके सामने रखा हुआ है।
ओमेगा एन निकाल लीजिए। ओमेगा एन कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ के बाई एम। ये बार बार बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, सारी चीजें अपनी यूज कीजिए। ओमेगा, ओमेगा एन, आर निकालो, जीटा दे रखा है, सब कुछ यूज करके एक्स नॉट बताइए कितना आ रहा है। निकला क्या? सेवन पॉइंट वन फाइव फोर इंटू 10⁻⁻5 मीटर। चेक कर लेते हैं इसमें। 7.1, ठीक है। 7.1, एक बार बताना क्या बताया था आंसर? 7.154 इंटू 10⁻⁻5। -5 मीटर। तो ये आएगा आपका -5 मीटर ना। यस सर। तो अगर इसको मिलीमीटर में लेना है तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो दैट विल बी 0.0715 मिलीमीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आपका करेक्ट है, 0.069 मिलीमीटर या 0.71 मिलीमीटर, ठीक है। 0.002 का फर्क है। सो आई विल से दैट योर आंसर इज करेक्ट। ओके, नाउ this is another highly conceptual part. Dynamic load on each isolator due to vibration, ठीक है।
डायनेमिक लोड का क्या मतलब है? आपके 4 आइसोलेटर्स हैं, ये रेडियो का बेस है, ये 4 आइसोलेटर लगे हुए हैं और हर आइसोलेटर एक स्प्रिंग डैम्पर के कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो रेडियो और मशीन के बीच में 4 आइसोलेटर्स हैं। इसके ऊपर डायनामिक लोड का क्या मतलब होता है? अपन इनको ऑलरेडी अपन इसमें कन्वर्ट कर चुके हैं। ये मास है एंड दिस हैज बीन इक्विवेलेंटली कन्वर्टेड इनटू वन स्प्रिंग एंड वन डैम्पर, ये तो कर ही लिया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक लोड? डायनामिक लोड का मतलब है कि आपके आइसोलेटर पे टोटल कितनी फोर्स जनरेट हो रही है जब ये डायनामिक कंडीशन में है। तो अब आपको ये पता है कि आपका हर आइसोलेटर एक स्प्रिंग और डैम्पर का कॉम्बो है, और स्प्रिंग की फोर्स जो होती है वो के वाई नॉट होती है, और डैम्पर की फोर्स जो होती है वो सी ओमेगा वाई नॉट होती है। और आपको ये भी पता है कि डैम्पर फोर्स और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के रखते हैं। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि भाई अगर मैं ये सिर्फ ये पूछूं कि स्प्रिंग फोर्स कितनी है, तो आप के वाई नॉट कर दोगे। और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि डैम्पर फोर्स कितनी है, तो आप सी ओमेगा वाई नॉट कर दोगे। और अगर कोई मेरे से ये पूछे कि स्प्रिंग और डैम्पर दोनों साथ में लगा करके और उन पे टोटल फोर्स पूछूं तो कितना होगा? क्या लगता है आपको? सर ऐड अप हो जाएगी। क्या के वाई नॉट प्लस सी ओमेगा वाई नॉट कर दो क्या? Yes. यस नहीं कर सकते ऐसा। आप कभी भी किसी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐड तभी कर सकते हो जब वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या फिर कोलीनियर हो। अगर मेरी के वाई नॉट और सी ओमेगा वाई नॉट एक ही लाइन पे होती तो मैं टोटल फोर्स को के वाई नॉट प्लस सी ओमेगा वाई नॉट कर देता। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? आप बताओ देख करके। सी ओमेगा वाई नॉट और के वाई नॉट एक लाइन पे कभी भी नहीं होते, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। So how do I find the total force of spring and damper? ये तो नहीं कर सकता मैं, पहले ही बोल दिया, क्योंकि एक लाइन पे नहीं है दोनों। दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं हमेशा। तो हाउ डू आई फाइंड इट? किसी को नहीं आता इसका आंसर? सर रूट ऑफ दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू यस, यू हैव एडिशन। टू फाइंड द वेक्टर रिजल्टेंट। वेक्टर सम निकालना है इसका। वेक्टर सम का मतलब है कि वेक्टर फॉर्म में इनके बीच में कोई एंगल है, तो फिर इसका पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ लगा करके आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है। एंड द रिजल्टेंट इन दिस केस इज नथिंग बट दिस इज द रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अगर ये सी ओमेगा वाई नॉट है तो ये भी सी ओमेगा वाई नॉट है, तो ये सी ओमेगा वाई नॉट हो गया, ये के वाई नॉट हो गया। इसका और इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? So the total force or the dynamic force on your isolator is under root of c omega y naught का स्क्वायर प्लस के वाई नॉट का स्क्वायर। अब बस इसमें एक छोटा सा पंगा और है, यहाँ पे अपर वाई नॉट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सर क्योंकि रिलेटिवली सर वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, एक्स नॉट वेरी माइनस वाई गुड। नॉट डिस्प्लेसमेंट हो रहा इसीलिए अपन वाई नॉट यूज नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहता कि भाई मेरी जमीन तो फिक्स है और ये मास जो है ये मेरे आइसोलेटर को वाई नॉट से प्रेस और स्ट्रेच कर रहा है, तब तो मेरा डायनामिक फोर्स हो जाता सी ओमेगा वाई नॉट का स्क्वायर प्लस के वाई नॉट। लेकिन मैं तब क्या करूं जब मेरा ग्राउंड भी फिक्स नहीं है और ये खुद भी चल रहा है, ये वाई नॉट से चल रहा है और मेरा मास एक्स नॉट से चल रहा है। तो मैं डायनामिक फोर्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और डैम्पर कैसे निकालूंगा? ये बताओ।
तो उस केस में मेरे को इस y नॉट को रिप्लेस करना पड़ेगा z नॉट से। यहां पर काम आता है ये z नॉट। समझ में आया आपके? अगर मेरी सपोर्ट फिक्स्ड होती तो मेरा डायनामिक फोर्स निकालने में y नॉट काम आता, लेकिन अगर मेरा सपोर्ट फिक्स्ड नहीं है तो डायनामिक फोर्स निकालने के लिए मुझे y नॉट को हटा करके रिलेटिव मोशन z नॉट लगाना पड़ेगा। बस यहीं पर आपका ये फॉर्मूला काम आएगा जो आपने एक्साइटेशन ऑफ सपोर्ट के लिए टुवर्ड्स द एंड सीख करके रखा था, दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने इस डेटा को यूज करेंगे और z नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप, z नॉट निकालने के बाद जब आप इस फॉर्मूले को देखेंगे डायनामिक फोर्स का फॉर्मूला, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स डायनामिक इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी ओमेगा z नॉट का स्क्वायर प्लस k इंटू z नॉट का होल स्क्वायर। अब रिजल्टेंट फोर्स ऐसे निकलेगी रिलेटिव मोशन के साथ। और एक और चीज फाइनली करनी पड़ेगी, आपसे पूछा गया है डायनामिक लोड ऑन ईच आइसोलेटर। तो आपने जो यहां पर C और K की वैल्यू लेकर के यूज किया था, उससे ये जो डायनामिक फोर्स आएगी दिस विल कम आउट फॉर टोटल ऑल 4 आइसोलेटर्स। तो आपको इवेंचुअली ये जो FD है, इस FD को डिवाइडेड बाय 4 और करना पड़ेगा, दिस विल बी फोर्स पर आइसोलेटर। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये करके आप एक बार चेक करना, ये आंसर नोट कर लो, प्लीज नोट दिस आंसर। और ये मैं वाइब्रेशन ट्यूटोरियल शीट क्वेश्चन एक और बार भेज दूंगा, इसका सॉल्यूशन मेरे पास में है नहीं, बट लेट मी टेल यू, ये आपकी ग्रोवर की जो बुक है, ग्रोवर की बुक के अंदर एक क्वेश्चन है। अब जो सॉफ्ट कॉपी आपको दी है उसमें पेज नंबर अलग हो सकता है, यू हैव टू सर्च फॉर दिस, बट अदरवाइज मैंने आपको प्रोसीजर तो बता ही दिया है पूरा। आप इसका आंसर चेक कर लेना इससे, दिस शुड बी नियरली इक्वल टू 0.94 न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया आपको कैसे किया है? ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको समझाया ये क्लियर तो हो गया ना? यस सर। और उसके अलावा जो ब्लू कलर में मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ है, ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपके ट्यूटोरियल के सॉल्यूशन के साथ में है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है ये अगले टॉपिक में मिलेगा। ठीक है, और येलो वाले जो हाईलाइट हैं ये सारे आपको रोटरी और रेसिप्रोकेटरी इम्बैलेंस के हैं। सो प्लीज सॉल्व ऑल द हाईलाइटेड क्वेश्चंस एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, इसको छोड़ देना, ये अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आंसर नोट कर लो आप। एंड नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस, प्लीज स्टे विथ मी।